Hi guys, welcome to IFCAT to 2020 Current Affairs. This is part 6 of this similar series. Please make sure that you go through part 1 to part 5 as that is equally important. Talking about Insight SSB app, you can go and download it from the link in the description box. It covers all the important defense related examination, be it written or your SSB preparation. Also, you can go for this PDF course that covers all the important current affairs for IFCAT to 2020 examination. And a good news for all of you, as you all have been requesting me for the CDS GS course, as you are unable to score even 20 plus marks in your CDS GS part, and you want a synchronized strategical preparation for your GS portion. So this is the crash course that Insight SSB has come up with. So this is a 35 days crash course, and we will make sure that you can go and clear this particular cutoff, that is you get 20 plus marks in your GS portion. Now talking about this course, it is starting from 1st of October and the registrations will start from today itself, that is 23rd of September. But the main thing here is that we just have limited number of seats because we want to give individual attention to everyone, as we cannot compromise with the fact that you couldn't clear the exam, right? So if you're ready to give 4 to 5 hours regularly on studies, because GS जो है that is very extensive part, right? तभी please आप इसमें enroll करना. Otherwise, please don't, because we need hardworking students and there are limited seats for the same, right? And talking about what will be there in the course, so there will be video lectures. It's not like कि हमने आपको print करा के material दे दिया, just read that. No, that's not working. We'll have proper video lectures and very, very specific, because अभी हमें किसी भी तरह 20 plus marks लाने हैं, because your counterparts are now revising their syllabus and you will be beginning with your syllabus. So there is a huge gap between you, and we have to make sure that we shorten that gap so that you can clear the examination. So basically live doubt sessions involved हैं, सारे current affairs covered हैं, mock tests भी involved हैं इसके अंदर, और उसके साथ live doubt session है mock test के. ठीक है, तो प्लीज इन केस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम एंड आपके पास कम टाइम है, आपको समझ नहीं आ रहा कि जीएस कैसे कवर करनी है, go and enroll today itself, because we don't know when we have to close this particular course, as we have limited number of seats. Now moving forward to the questions that are important. The first question is, who has won PGG award for 7th time and he has broken down the 67-year-old record? So he is none other than Messi. We are very aware of this particular name. He is such a renowned footballer and बार्सिलोना के लिए खेलते हैं. And from which country he belongs, ये आप बताएंगे मुझे, ठीक है? Next question is 28th Delhi World Book Fair जो था वो फोकस किया गया है किस लीडर के ऊपर? तो पहली बात, वर्ल्ड बुक फेयर जो है वो दिल्ली के अंदर हुआ है इस बार, 28th एडिशन है उसका, और ये कहाँ पर हुआ था? प्रगति मैदान के अंदर, ठीक है? तो इट वॉज एक्चुअली फोकस्ड अपॉन वन लीडर एंड ही इज महात्मा गांधी. महात्मा गांधी अभी काफी ज्यादा न्यूज में इसलिए रहे हैं बिकॉज उनकी 150th बर्थ एनिवर्सरी थी, जिसकी थीम रही थी गांधीज राइटर्स राइटर. ठीक है, तो हमारे लिए ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पहली बात, वर्ल्ड बुक फेयर दिल्ली में हुआ है. सेकेंड बात यह है कि ये महात्मा गांधी जो है, he has been the leader जो कि मेन फोकस रहे हैं इस पर्टिकुलर वर्ल्ड बुक फेयर के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which games were included in खेलो इंडिया गेम्स for the first time? तो फर्स्ट टाइम कौन से गेम इंक्लूड हुए हैं? तो थर्ड एडिशन के अंदर टोटल 2 गेम इंक्लूड किए गए हैं, वन इज साइकिलिंग एंड वन इज लॉन बोल्ट्स. तो ये जो पर्टिकुलर 2 गेम हैं इनको इंक्लूड किया गया है. Next question is, who has become the first Indian to be awarded with prestigious Richard Dawkins Award 2020? अब देखो, he is the first Indian, और मैंने आपको बताया first who is who type के question important हो जाते हैं. तो he is none other than Javed Akhtar who has been awarded with this particular award. तो कौन सा award है ये? Richard Dawkins Award 2020. He is the first Indian who has been awarded with this particular award. Next question is, who has been selected for prestigious United Nations Military Gender Advocate of the Year Award 2019? ये 2019 का अवार्ड है, दिया गया है अभी 2020 में ही दिया गया है. ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है आने के. क्यों? बिकॉज it is Indian peacekeeper, one of the Indian Army officer. Her name is Major Suman. तो जो ये हैं, she has been the peacekeeper in South Sudan. ठीक है,
तो साउथ, आप जैसे कि जानते हैं हमारे कंट्री से पीस कीपिंग मिशन जाते हैं, तो साउथ सुडान के अंदर ये थी हमारी जो मेजर सुमन है, शी हैज बीन देयर। एंड इसके अलावा वन मोर ऑफिसर हैज बीन गिवन दिस पर्टिकुलर अवार्ड, तो इन दोनों को एक साथ दिया गया है। हर नेम इज कमांडर कार्ला मोन्टारियो दे कैस्ट्रो, एंड ये ब्राजीलियन नेवल ऑफिसर हैं। सो यू नीड टू रिमेंबर बोथ ऑफ दीज नेम्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट किस लिए हो जाता है, क्योंकि जो मेजर सुमन है, शी हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन पीस कीपर टू विन द अवार्ड। तो पहली पीस कीपर जिन्हें ये अवार्ड मिला है वो ये हैं, एंड शी इज द फर्स्ट वुमेन एज वेल फ्रॉम इंडियन साइड। तो प्लीज रिमेंबर इट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो अवार्ड है ये दिया किसने है, सो एक्चुअली जो यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी हैं जनरल एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने दिया है। और ये किस दिन दिया है, इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स। तो ये कब होता है इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड पीस कीपर्स, इट इज ऑन May 29। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 2-3 टाइप के क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो प्लीज रिमेंबर ऑल ऑफ दोज इंफॉर्मेशन दैट आई हैव टोल्ड यू अबाउट दिस पर्टिकुलर अवार्ड। Next question is, who has been named sports person of the year for the 4th time by India Sports Awards? तो कौन है वो? She is none other than PV Sindhu. She has been awarded this for the 4th consecutive time. So please you need to remember this, and it is given by Times of India. ठीक है, तो इसको टोयसा भी बोलते हैं, Times of India Sports Person of the Year. ठीक है, next is, who has been ranked first in the world ranking of men elite 52 kg weight category according to World Ranking 2020, जो कि रिलीज किए गए हैं बाय इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। तो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन ने वर्ल्ड रैंक रिलीज की है 2020 के लिए। उसमें जो फर्स्ट है वर्ल्ड के अंदर 52 kg वेट लिस्ट में, ठीक है, तो 52 kg वेट के अंदर जो फर्स्ट आए हैं वो कौन है, ही इज नन अदर देन अमित पंघाल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज पहली बात इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन ने दिया है, वो भी वर्ल्ड रैंकिंग में हमारी कंट्री से फर्स्ट रैंक पे है। सो दिस थिंग गेट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो हु इज ही इज अमित पंघाल। नेक्स्ट इज, हु टॉप्स फोर्ब्स लिस्ट ऑफ हाईएस्ट पेड स्पोर्ट्स एथलीट 2020। तो जो फोर्ब्स है वो हमेशा एक लिस्ट रिलीज करती है ऑफ हाईएस्ट पेड स्पोर्ट्स एथलीट, तो उसमें कौन है, ही इज रॉजर फेडरर। ठीक है, तो ही इज द फर्स्ट इन दिस पर्टिकुलर लिस्ट। ऑल्सो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि फर्स्ट इंडियन है, जो कि फर्स्ट इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन जो कि इस लिस्ट में है, तो प्लीज आप उसे याद करने की कोशिश करें कि वो कौन थे। ठीक है, नेक्स्ट है, which country ends death penalty for crimes committed by minors? Now, as we know in India, कि हमारे पास juvenile courts होते हैं, right? So, death penalty is not there when it's about juvenile. ये एक ऐसी country है जिसके अंदर death penalty was there for the minors. तो अभी recently ये law हटाया गया है, और ये कौन सी country है? It is Saudi Arabia. ये equally important question है for CDS exam. Please remember this. Next is, who was named India's most valuable player of 21st century? तो इंडिया का most valuable player 21st century ये किसने दिया है? विजडन ने दिया है। ठीक है, और इनकी कंट्रीब्यूशन किस किस में रही है? बैटिंग में भी रही है और फील्डिंग में भी रही है। तो कौन है वो? ही इज रविंद्र जडेजा। प्लीज रिमेंबर दिस नेम। एंड इंडिया के सबसे वैल्यूएबल प्लेयर रहे हैं 21st सेंचुरी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है, who has been announced as winner of Asian region prize। तो एशिया का जो रीजन है उसमें उन्हें ये प्राइज मिला है। तो एशिया रीजन के अंदर जो एक प्राइज है शॉर्ट स्टोरी के लिए दिया गया है, और जो ये विनर है ये है 2020 कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज। ठीक है, तो अगर पूछते हैं कि 2020 कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज जो है किसको मिला है, तो वो कृतिका पांडे को मिला है, और ये एशियन रीजन जो है उसमें ये प्राइज दिया गया है इन्हें। ठीक है, और वो शॉर्ट स्टोरी का नाम क्या है? दैट इज द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक्स। तो आपसे ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है? पहली बात ये पूछा जा सकता है कि जो 2020 कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज है, ठीक है, वो किसको मिला है? तो दैट इज कृतिका पांडे। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो शॉर्ट स्टोरी है द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक्स, ये किसने लिखी है? तो अगेन द नेम इज कृतिका पांडे। प्लीज रिमेंबर इट। अब हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन इस तरीके के क्रिकेट के रिगार्डिंग पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको 4 क्वेश्चंस है जो हम डील करेंगे इसके अंदर। प्लीज रिमेंबर दिस, ये आपके लिए थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये चारों के चारों नेम्स एज इट इज याद रखने हैं, और किस चीज के लिए उन्हें मिला है वो भी आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन है कि फास्टेस्ट इंडियन टू रीच 100 ओडीआई विकेट्स। तो वनडे इंटरनेशनल के अंदर जो सबसे पहले हैं जिन्होंने
100 ओडीआई विकेट्स ली, वो कौन है? ही इज मोहम्मद शामी। तो उनको सबसे कम टाइम में सबसे ये जो 100 ओडीआई विकेट्स हैं वो कौन कर पाए हैं? दैट इज मोहम्मद शामी। नेक्स्ट आता है हरमनप्रीत कौर जो है, ही इज द फर्स्ट इंडियन जिन्होंने 100 T20 मैचेस जो हैं खेले हैं। उसके बाद आता है जसप्रीत बुमराह जो है, ही इज द फास्टेस्ट इंडियन पेसर जिन्होंने 50 टेस्ट विकेट्स ली हैं। ठीक है। उसके बाद मिथाली राज जो है वो फर्स्ट विमेन क्रिकेटर हैं जिन्होंने 20 इयर्स वनडे इंटरनेशनल में कंप्लीट करे हैं। ठीक है, तो हमें ये 4 चीजें याद रखनी है। मोहम्मद शामी जो है, ही इज द फास्टेस्ट इंडियन जिन्होंने 100 ओडीआई विकेट्स ली हैं। उसके बाद हरमनप्रीत कौर जो है वो फर्स्ट इंडियन है जिन्होंने 100 T20 मैचेस जो हैं वो खेले हैं। उसके बाद जसप्रीत बुमराह जो है वो फास्टेस्ट इंडियन पेसर हैं जिन्होंने 50 टेस्ट विकेट ली हैं। एंड नेक्स्ट एंड द लास्ट इज दैट मिथाली राज जो है, शी इज द फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर जिन्होंने 20 इयर्स वनडे इंटरनेशनल के अंदर खेले